डिस्कस इट डिटेल, ठीक है। बायोटिक क्या हुआ है, आपके लिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। The biotic component is the living members of the ecosystem, okay, and they are basically plants, animals and microorganisms, ठीक है। Plants are called as producers, animals are called as consumers, and microorganisms are called as the decomposers. So now we will discuss about producers, ठीक है। इसमें थोड़ी स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने, प्रोसीडर्स कर दिया है, तो प्लीज मेक इट करेक्ट। प्रोड्यूसर, PRODU, प्रोड्यूसर CER, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, ये टर्म भी नोट डाउन करिए और याद रखिएगा। तो प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप, ऑटो का मतलब होता है अपने से, सेल्फ, ठीक है। ट्रॉप्स मीन्स फूड होता है, तो जो चीज़ें अपने से फूड सिंथेसाइज कर सकती हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, ओके, और ऑटोट्रॉप्स। Producers or autotrophs are those organisms which can synthesize their food by themselves, जो अपने आप से अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। They are not dependent on other organisms for gaining the food, fine. So all these producers and autotrophs are basically the green plants, ठीक है। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, और दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो फोटोसिंथेसिस अभी हमने क्या बताया, द प्लांट रिक्वायर्ड CO2, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका इक्वेशन लिखा है फोटोसिंथेसिस का, ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन करिए। So this is the equation by which you explain the process of photosynthesis, ठीक है। तो photosynthesis में sunlight तो है सर, उसमें CO2 and water is required, okay. So in the presence of this sunlight, CO2, sunlight and water, this H6 C6H12O6 will be formed. C6H12O6 is the glucose, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये है बेसिकली, ये जो फूड है, ये फूड जो है आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो फूड इज बेसिकली दिस C6H12 and O6, and then after the process of photosynthesis the plant uses CO2 but they release oxygen, ठीक है। Clear to you? So this whole process, it takes place in the presence of a pigment, green pigment, that is called as chlorophyll, ठीक है। So in the leaves of green plants, chlorophyll is present, which converts CO2 and O2 in the presence of sunlight into carbohydrate, and this whole process is called as photosynthesis. So this is a diagrammatic representation of the process of photosynthesis, okay. You see here solar energy, the sun light is reaching to the leaf. This is the leaf where chlorophyll is present, and in the presence of carbon dioxide and water and chlorophyll, what will happen, that the process of photosynthesis will take place, ठीक है। ये देखिए CO2 है, water है, chlorophyll है आपका, and sunlight, ठीक है। So all these things, they will result into the formation of sugars or carbohydrate, and it will also release the oxygen, okay. The sugar molecule will be formed and the oxygen will also be released. Clear to you? So I have already told you that animals are the heterotrophs, okay. Heterotrophs is that group of organisms which are dependent on autotroph for their food, ठीक है। जो heterotrophs होते हैं, they cannot synthesize their food like the plants, the green plants, autotrophs, okay. So they are dependent on heterotrophs are dependent on autotrophs for their food directly or indirectly. So basically heterotrophs comprises of the various type of animals. They are basically the plant eating animals, ठीक है। Plant eating animals like rabbit, goat and deer, fine. So heterotrophs को भी हम further classify करते हैं, ठीक है। तो heterotrophs और consumers को हम further classify करेंगे
प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर मीन्स दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हर्बीवोर्स, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। मीन्स कंज्यूमर्स में अब आपके तीन तरीके के आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, ठीक है। एंड दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसे कहते हैं हम, जो मीट खाते हैं, मीट ईटर्स, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स, जो मीट खाते हैं ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स, ओके। सो प्राइमरी कार्निवोर्स दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर्स किसको खाते हैं, सॉरी सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है वो आपके हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग देयर फूड बिकॉज दे आर मीट ईटर्स। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर्स किसको खाते थे, हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कार्निवोर्स जो हैं दे आर ईट द प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। they can eat these primary consumers also as well as they can eat the secondary consumers also, ठीक है। so tertiary consumers they are dependent on secondary consumers and primary consumers for their food, ठीक है। and they are also meat eaters, जैसे आपके टाइगर है, लाइन है, ठीक है, वो डियर को भी खा सकता है, ठीक है, और वो फॉक्स को भी खा सकता है, ठीक है। तो डियर क्या थी, हर्बीवोर थी, और फॉक्स क्या है, प्राइमरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो इट ऑलवेज दीज टर्शियरी कंज्यूमर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन। Decomposers means the organisms, I mean like bacteria, fungi, they are called as the decomposers. Why they are called as decomposers? क्योंकि ये जो हैं they are dependent on dead bodies, ठीक है। they are dependent on dead bodies of producers and consumers. ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेड बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर आई मीन ऑब्टेनिंग देयर फूड, ठीक है। उनको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड दे कन्वर्ट दीज डेड बॉडीज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है। और जब सिंपलर कंपाउंड्स में व्हेन दे कन्वर्ट इट, तो इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिंपल फॉर्म में। अभी आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था प्रेजेंट, तो ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, इनके तोड़ देते हैं सिंपल फॉर्म्स में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं। फिर व्हाट विल हैपन कि सिंपलर फॉर्म में ये रिलीज करने के बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, so these inorganic nutrients which are released in the simpler forms, what will happen, they will again utilized by the producers for the synthesis of their own food, ठीक है। तो ये एक तरीके की साइकिल है, पहले डिकम्पोजर जो हैं इनको सिंपल डेड बॉडीज को खाएंगे, मतलब डिकम्पोज करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे तो उससे मिनरल या न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, फिर वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड।